everybody. This is Ria and welcome to Up Close and Personal. Well, आज के हम जो शो है उसको स्टार्ट करने से पहले let me tell you thank you guys from on behalf of all the Catapult members, क्योंकि आपने हमारा जो लास्ट वीक का शो है उसको इतना अप्रिशिएट किया. You all have given us unbelievable comments and जो हमें अभी भी मिलते हैं. So I think that's a great motivation and that is what brings us to the second episode, and we promise that ये धीरे 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 it'll keep getting better with time. Yeah. And of course it's no secret आज के भी जो हमारे आर्टिस्ट है, हमारे गेस्ट है, you guys all know about him, but let me give you a bit of how am I connected. I got a chance to work with this amazing human being for a very short time, but I was glad that I met him. And I'm going to introduce him and his creative side to you once he's on screen. So can we have Abhinav? From Hello. Mr. India to being live. Hi, yaar. I see a lot of places where कोई कुछ बोलता नहीं है. So I was like, let me discover this. Let me keep it off camera. Yeah. नहीं तो बहुत weird लगता है. वैसे भी mute or unmute is the learning of the pandemic. Yeah. So guys, पहले एक formal introduction हो जाए. वैसे अभिनव never thought ना हम ऐसे भी मिलेंगे. Never. This year has been full of surprises anyway. Yes. And so for everybody, once again, आपने of course हमारे posts read किए हैं and you guys already know who he is, but let me tell you all, he is this amazing writer who writes, I think, about everything. Songs, dialogues, situations, ads. और मुझे लगता है आप लोगों ने उनके बहुत सारे काम को ऐसी रेडियो, डिजिटल एड्स, टीवी, वेब सीरीज सुना होगा, but we got you the man. We will tell you कि ये है वो जिनकी बातों को आप सुनते हो. And let actually मेरे से ज़्यादा अभिनव, first of all, thank you for joining us. Thank you for such and nice words in such a depressing climate otherwise. No, I'm sure ये मुझे बोलते आ रहा है I'm busy, so I'm sure it's not, the time is not depressing for you at all. So हम जानने वाले हैं आप भाई क्या क्या कर रहे हो, like what are you up to, what's pandemic got to you first of all. Yeah, It's been good or bad? See, overall, as it has been for everyone. It has been a very risky mamla overall, but बचते बचाते, that is how the approach has been. But yeah, work wise, it has been satisfying. I've been able to write a lot of interesting poetic pieces since March, and apart from the writing for the mainstay of my essence work, which is radio branding solutions. Apart from that, हाँ काफी अलग अलग तरह का काम करने का मौका मिला है, and there have been some pieces that have gone viral and all of that, so yes. not been that bad. No, I think Abhinav, it's been so nice to see that, especially पता है क्या होता है when you know somebody ना, it's just a little more, भले we have hardly worked for वो भी not very directly, but it just feels good that okay, that's so nice to know the person and things are great, so that is very good. But again, for everybody here जो आज हमें देख रहे हैं, उनको एक आइडिया देना है. आर्टिस्ट वाइज हम हमेशा मोस्टली परफॉर्मिंग आर्टिस्ट से मिलते हैं, बट मुझे लगता है ये जो एक राइटर, एज अ राइटर व्हेन यू स्पीक और when I want to hear somebody, I think ये different, बहुत ही एक different experience होने वाला है for people to know how it is for a writer. I mean, how is the whole talent, how do they realize their thing, and writing एक specifically profession बना लेना. So I think guys, if you all are here and watching us, this is going to be very interesting. So आप भी हमें अपने queries and questions comments में डाल सकते हैं so that we can direct them to Abhinav. And yeah, but वो जब तक आता है, you tell us your story, Abhinav. Like even actually before story, मुझे ये बताओ कि आपके लिए writing क्या है?
um so I would actually शुरू से शुरू करते हैं अभी इनफैक्ट 25 सितंबर को ही I completed 13 years in media and I started with radio. I'm still with radio. um, I've done a lot of things in between, as in the TV has happened. I've written for some short films. I've written for digital extensively in the past few years, but radio is where I had actually begun. And I had begun basically as somebody who would take calls in a radio station. You would understand that. Yeah. While the RJ is doing the show, I used to take the calls here, as in on the other side. It was And also be on a few times also be on the call with the RJ कि हाँ मैं वो कॉलर हूँ जो सच में नहीं है. that's a secret. So yeah, Okay. so I joined this station which was called Meow 104.8 FM, which was India's first just for women talk format station. So that's a format where you send live callers. तो जैसे रेडियो स्टेशन में आरजेस कॉलर्स लेते हैं डायरेक्टली इन इंटरनेशनल फॉर्मेट इन इंटरनेशनल टॉक फॉर्मेट बेसिकली अ प्रोड्यूसर स्क्रीन्स द कॉल्स कि जो अभी जाके आरजे से बात करने वाला है उसे वाकई पता भी है नहीं किस चीज पे बात हो रही है. कहीं बात हो रही हो क्रिकेट की, वो बात करे किसी और चीज कुकरी की. So that is how I started. But in a radio station, I realized that I used to love the job of my copywriter. Her name is Shubhangini, and I used to see that there's this one woman who keeps writing ads all day. So she used to think कि इस situation में क्या करें. She used to just ask us. I think 22-year-old and all. I really used to love the entire ad world वाला काम कि अरे यार स्क्रिप्ट लिखने में कितना मजा आता है, किसी एड को कैसे आप इंटरेस्टिंगली बेच सकते हो. So I started copywriting with her. उससे पहले अच्छा. while I was doing mass comm, people used to say that you script well, तेरी scripting तेरा. लेकिन mass comm में क्या होता है कि एक थाली की तरह होता है बेसिकली. आप सब चीज चख रहे हो थोड़ी थोड़ी. आप थोड़ा सा कैमरा, थोड़ा एडिटिंग, थोड़ा सा स्क्रिप्टिंग, ये सब. सो यू डोंट आपको थोड़ा अंदाजा मिलता है कि हाँ शायद मैं ये चीज उससे बेहतर करता हूँ. So, but in the radio station, I realized that I really enjoyed writing all those ad spots जो हम रेडियो में सुनते हैं. तब वो मिमिक्री का दौर था. हर एड में शोले की मिमिक्री होती थी, तो वो लिखने में और भी मजा आता था. But that is where I realized that maybe writing is something that I really like. So apart from being a producer, I became an assistant copywriter, and Okay. that is where the first form of writing happened. And I was getting appreciated कि हाँ ये अच्छे ads लिख रहा है and all of that. Then I left radio in between. I did some bit of TV writing. वहाँ पे भी थोड़ा दूरदर्शन के projects थे, उसमें भी scripting थी. Then again I joined another radio station which is Radio 1 in its Hindi format in Delhi, and that is where I started working for client solutions, and there writing ad spots became like a daily affair. And we also used to write characters on radio जो हम स्पार्कलर्स वगैरह सुनते हैं. हाँ. वो सब भी लिखने का मौका मिलता था बिकॉज वी आर डूइंग प्रोग्रामिंग एज वेल एज सेल्स के लिए कॉपी राइटिंग. सो दैट इज व्हेन आई बिकेम अ लिटिल सीरियस अबाउट कॉपी राइटिंग एज इन राइटिंग. Writing. Okay. Yeah. लेकिन so that means you didn't really have a plan, like ऐसे कोई realization moment तो ये आया ठीक है, but nothing earlier like college time and all ऐसे कुछ plan नहीं था कि okay this is the forte, जिसमें मुझे जाना है. Did you जैसे think कि यार creative में कुछ? हाँ, सो बेसिकली मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, और साइंस के मतलब आई हैव डन बीएससी इन जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री. तो उसमें तो मैं इतना पढ़ के जाता था और कुछ Okay. होता नहीं था. लेकिन मेरी क्लास में कुछ बच्चे थे जो मास कॉम को एग्जाम दे रहे थे, तो मैंने खैर उस वक्त आई हैड नो आइडिया कि मैं मास्टर्स किस में करने वाला हूँ. जो अगर कुछ बच्चे आर्मी का एग्जाम देने जाते थे मैं वो उसका फॉर्म भर देता था. कुछ लोग मास कॉम करने जाते थे, मैं उसका भर देता था. तो मेरी क्लास में से तो शायद ज्यादातर लोगों का हुआ नहीं मास कॉम में, लेकिन मेरा फॉर्चुनेटली हो गया. एंड दैट इज वेयर आई रियलाइज कि मैं कम पढ़ता था और ज्यादा नंबर आते थे.
तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार ये थोड़ा सा मेरा हाँ स्ट्रॉन्ग एरिया है। वहां मैं जूलॉजी बॉटनी में अच्छा घिसता रहता था। एग्जाम से एक दिन पहले कुछ याद लिखने जाता था तो याद नहीं होता था। So that is where I realized that maybe this comes easy and naturally to me, because there was या मास कॉम में जैसे होता है कि रेडियो राइटिंग कराते हैं, टीवी राइटिंग कराते हैं, डॉक्यूमेंट्री राइटिंग कराते हैं। तो वो थोड़ा मेरे लिए आसान था, तो मुझे लगता था कि हाँ ये इतना मुश्किल काम नहीं है, इसमें कुछ हो सकता है अपना। तो बट पता दैट है वाज अभिनव, ये सुन के आई थिंक ये सुन के बहुत सारे लोग, क्योंकि मुझे भी ऐसी क्लैरिटी, क्योंकि मुझे अभी भी ये थॉट्स आता है यार, रियली इज दिस द थिंग। बट नाउ दैट यू आर सेइंग, तो आई थिंक जिनको वो सारी चीजें, आई थिंक दिस इज द प्रोसेस कि आपको समझ लेना चाहिए कि भाई हिंट्स है, या वो मत ट्राई करो, और मे बी ट्राई समथिंग जो नेचुरली बहुत करेक्ट। ऑटोमेटिकली अच्छा हो रहा है, एफर्टलेस हो रहा है। सो चलो, अच्छा लगा सुन के कि सभी हम जैसे लोग ऐसे ही होते हैं। हाँ, आई बट थिंक ऑफ कोर्स जिसमें थोड़ा सा कम मेहनत लगानी पड़े, वो आई थिंक दैट इज द क्लू बेसिकली। राइट, यू नो माय फादर स्टिल टेल्स मी, काश तूने मैथ्स पढ़ लिया होता है। आई वाज लाइक, मतलब क्या कर लेती, मैथ्स भी पढ़ लेती तो कुछ नहीं करती। सो बट या आई थिंक ओके, मैथ्स बट मैथ्स गाइस, मैथ्स हाँ, मैथ्स से तो एक अलग रिश्ता है, वो तो फिर कभी। उसमें तो रिश्ता ही नहीं है, वही वो रिश्ता है कि उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। So and you know, like of course, like आपने बोला कि ये जॉब है, and today we know आपने different different jobs किए, and today you are also doing a lot of your own work, right? तो ये balance वाला कैसे, like didn't you think कि you know, I'm done with the, like how do you balance it out basically? आप इधर एक set rules में भी काम कर रहे हो, और एक खुद का भी, स्पेशली क्योंकि आपका वर्क बहुत, it needs the head, free head. Yeah, so I think so for a lot of years, I think I would say for the first 10 years of my प्रोफेशनल लाइफ, तो मैं नौकरी ही कर रहा था। मतलब नौकरी क्यों Hmm. अलग इसलिए थी क्योंकि हमारा राइटिंग का इट वाज क्लोजर टू माय पैशन। इट इज क्लोजर टू माय Right. पैशन, थिंकिंग आइडियाज, बट इट्स जस्ट दैट इट वाज राइटिंग फॉर ब्रांड्स लार्जली, इट वाज नॉट राइटिंग फॉर माई सेल्फ। So Right. I think it was the beginning of 2017 when I started seeing a lot of content pages being made on Facebook, Hmm. Instagram। तो ये बहुत लोग कंटेंट बनाते थे और डालते थे, और वो बनाते थे और वो डालते थे जो उनका स्ट्रेंथ एरिया था। जैसे singers used to Right. post singing videos, a lot of Yeah. characters, sparklers, sketches were being created. In fact, I had started writing for digital uh, from 2015 itself. उससे पहले भी मैंने टीवी के लिए I was writing Hmm. न्यूज सटायर शो, 2G करके एक शो था IBN 7 पे। तो मैं रेडियो के साथ साथ आई हैड स्टार्टेड राइटिंग फॉर डिफरेंट मीडियम्स, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मोनोटनी ना हो कभी, और थैंकफुली जो लोग आसपास आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि शायद मैं टीवी के लिए भी लिख सकता हूँ। तो Hmm. डिजिटल में एडवेंचर्स ऑफ मफलर मैन करके हमने एक कैरेक्टर क्रिएट किया था विच वाज अ स्पूफ ऑन दिल्ली चीफ मिनिस्टर। Right. और it was doing very well with my friend Abhilash Taplial, who's also a radio jockey, um, and and uh, and an actor. So I had begun doing all of that, but अपना पेज बनाने का आइडिया मुझे 2017 की शुरुआत में आया, जब मुझे लगा यार मैं किस में अच्छा हूँ, मैं किस फॉर्म ऑफ राइटिंग में मुझे लगता है मैं अच्छा हूँ। तो कॉमेडी भी मैं उससे पहले लिख रहा था, कॉमिक में, लेकिन आई वाज थिंकिंग कि अगर मैं पेज बनाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा। सो इनफैक्ट आई वांटेड टू यूनाइट ह्यूमर एंड पोइट्री। तो मेरी जो शुरुआत की पोइट्रीज हैं, मैंने 2017 में मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि यार चलो संडे को मैं पोइट्री डालूंगा। तो रविवार को मैंने सोचा कि रविवार से कविवार करते हैं, कि अब हर रविवार होगा कविवार। Hmm. सो आई थॉट कि क्या करना है, लिखेंगे एक चंक, रिकॉर्ड करेंगे, डाल देंगे। तो पहली जो पोइट्री मैंने डाली थी वो थी मुझे मिडिल क्लास सिंड्रोम है। उसके बाद की तो उसको अप्रिशिएट किया लोगों ने, लोगों ने मुझे बताया कि यार इसमें ना थोड़ा ऑडियो पे ध्यान दे, थोड़ा सा
फ्रेम ठीक रख, ये सारी चीजें। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कैमरा लेके कर सकता है तू ये सब, जब मैंने 2-3 डालना शुरू कर दिया। बेसिक उन पर इनपुट्स जो हमें भी आते हैं हाँ, अभी। करेक्ट कि ऐसे करना, वैसे कर, ये वाला माइक ले, वो कर, उससे कर, आवाज ठीक आएगी, एडिट किया कर, ये सारी चीजें। बट मेरा कंटेंट जो था वो थोड़ा ह्यूमर और पोएट्री को मिला के था। जैसे मैंने बोला मुझे मिडिल क्लास सिंड्रोम है, या 5% अप्रेजल। आई वांटेड टू क्रिएट अ पेज व्हिच इज बेसिकली न्यू एज रिलेटेबल पोएट्री। मतलब मैं ऐसे फूलों की शाखों में और ये सब नहीं करते। आई वांटेड टू बी वेरी डायरेक्ट एंड सो दैट इट echoes with the sentiment of a lot of corporate people. Correct, relatable. Correct, basically. correct. Because मुझे लगा क्यों कोई मेरा कुछ ऐसे ही शेयर करेगा, उसमें उसके लिए भी कुछ होना चाहिए. So that has been the idea of my page कविवार. And thankfully from तीसरी या चौथी पोएम से it started picking, and बारिश पे मैंने एक पोएम लिखी थी, वो वायरल होने से काफी वेट आया पेज पे, काफी ट्रैक्शन आया. और मतलब ऐसा भी हुआ कि लोग मैसेज करते थे इस रविवार को कविवार क्यों नहीं. फिर आप यू आर आंसरेबल, यू सडनली फील दैट आई एम आंसरेबल. देयर आर पीपल हु राइट, एब्सोल्युटली. इनफैक्ट हम आपका वो एक जो यू नो वी आर गोइंग टू ऑफ कोर्स सुनाने वाले हैं हम सबको एक एक. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो शुरुआत के जितने भी पोएम्स है या जो भी आपने लिखा है, उनमें से कुछ इफ यू वांट टू यू नो लेट एवरीवन हियर लाइव थोड़ा आपके कुछ शुरुआती वाले. हाँ, तो शुरू में तो क्या होता था कि बहुत सारी चीजें मैं जीमेल के ड्राफ्ट में 4 लाइनें लिख के छोड़ देता था. हाँ. कभी सोचा नहीं था पेज बनाऊंगा, बट ऐसा लगता था यार अच्छी लाइन है, कहीं यूज हो सकती है, कभी कुछ करेंगे इसका. ऐसे करके जीमेल के ड्राफ्ट में बहुत सारी पोएम्स वहीं पे रहती थी. बट जो मैंने डाली सबसे पहले वो मिडिल क्लास सिंड्रोम वाली थी. उसकी कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अपनी पोएम से याद नहीं रहती, तो यू विल हैव टू अलाउ मी 2 seconds till I find the poem. Yes, please. So it was called मुझे मिडिल क्लास सिंड्रोम है. इसकी एक शुरुआती लाइन जो मुझे याद है वो इतना कि हाँ मिल गई. सैलरी चेक से चल जाता, सैलरी चेक से चल जाता है बस महीने भर का खर्चा. पूरे साल का मालिक एफडी इंश्योरेंस हरिओम है. मुझे मिडिल क्लास सिंड्रोम है, मुझे मिडिल क्लास सिंड्रोम है. प्रेजेंट जॉब में सेट हुए अब हो गए 5 साल, पर अच्छा लगने लगा ससुरा ये कंफर्ट जोन है. मुझे मिडिल क्लास सिंड्रोम है, मुझे मिडिल क्लास सिंड्रोम है. हजारों से ही खुश हैं हम तो, भले बात करें अंबानी की. हजारों से ही खुश हैं हम तो, भले बात करें टाटा अंबानी की. वो क्या है कि दरअसल लाख और करोड़ लगते हमको, जरा एक्सीडेंट प्रोन है. मुझे मिडिल क्लास सिंड्रोम है, मुझे मिडिल क्लास सिंड्रोम है. और भी कुछ लाइनें हैं बट वाओ, इट इज सो रिलेटेबल यार, सच में. हम वही यू नो भले कितना भी सपना देख ले, अरे अंबानी को देखो, बट हम वही गिनते हैं. अच्छा इधर 10,000, इधर 10,000 and we are sorted. बस इतना हो जाए हम. So rightly said. I think आपके words इतने relatable है, no wonder it is going to places. But you know what? आपने हमको आपके शुरुआती poems बताए, लेकिन मैं सबको पहले ये दिखाना चाहूंगी कि from वो शुरुआत के जो 4 lines जो सिर्फ Gmail में थे, वहां से what are you doing now? तो मैं आपके कुछ latest काम में से एक दिखाना चाहूंगी. So give me a second and post that we will discuss the experience of that. Sure. मेरी आजादी मेरा राइट है, जरा कंडीशंस अप्लाइड. संविधान ने दिया मुझे सब कहने लिखने का राइट. पता ना था ये तब मुमकिन जब आप हैं उनकी साइड. मेरी आजादी मेरा राइट है, जरा कंडीशंस अप्लाइड. खाने पीने जीने का सबको अधिकार समान है, पर भीड़ को तुम पर शक हुआ तो तुम्हारी पहचान ही उनका संविधान है. मेरी जिंदगी और मौत भी मेरा नाम जप कर रहा डिसाइड. मेरी आजादी मेरा राइट है, जरा कंडीशंस अप्लाइड. किसान जो हूं मैं तो सब कुछ उगाने का फ्रीडम है, पर फसल जो असफल हुई तो बेरहम ये सिस्टम है.
कर्ज में डूबी लाचारी का क्यों चारा बस खेतों का पेस्टिसाइड। मेरी आजादी मेरा राइट है जरा कंडीशंस अप्लाई। बेटी जो हूं मैं, बचाओ और पढ़ाओ का मुझसे वादा है, पर बचूं किस किस से, घर दफ्तर जब टूटती हर मर्यादा है। मेरे बर्थ को चुनना भी जब तक किसी और का बर्थ राइट। मेरी आजादी मेरा राइट है जरा कंडीशंस अप्लाई। यूं तो देकर टैक्स मुझे हर सुविधा मिलनी चाहिए, सड़क के गड्ढों गुंडों से सुरक्षा मिलनी चाहिए, पर इस एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में अभी भी एक बड़ा डिवाइड। मेरी आजादी मेरा राइट है जरा कंडीशंस अप्लाई। रंग जात और धर्म के ये भेदभाव संगीन है, मुख हमें क्यों देखता ये आर्टिकल 15 है। हक होने और हक पाने के बीच रोजाना चलती है फाइट। मेरी आजादी मेरा राइट है जरा कंडीशंस अप्लाई। वाओ मैं इसलिए इसको दिखाना चाहती थी राइट आफ्टर योर फर्स्ट फ्यू जो आप लिखते थे, जस्ट टू टेल एवरीबडी दैट यू नो इट इज पॉसिबल गाइस, सो कीप ड्रीमिंग और कीप डूइंग। मे बी वो एक बहुत बड़ा मैसेज है व्हेन इट कम्स टू आर्टिस्ट रिलेटेड यू नो कन्वर्सेशंस। सो दैट वाज अमेजिंग अभिनव। बट टेल अस यार, इसका क्या था, मतलब आपको ऐसे बताया गया था, यू वर लाइक वेरी हैप्पी बिकॉज दिस इज ऑफ कोर्स अमंग आपके कुछ अच्छे अच्छे वर्क में से दिस इज अ वेरी वेरी बिग tag. Yeah. So No. So I had written this poem for my page Kavivar in year 2018. उसके इंडिपेंडेंस डे पे लिखा था मैंने। तो बेसिकली जब लिखता 2017-18 तक मेरी कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ यू नो पुटिंग आउट अ पोएम वाज वेरी गुड। सो आई यूज्ड टू टारगेट एवरी इंपॉर्टेंट डे एंड इफ आई हैड समथिंग टू से मैं लिख के आता था। तो मुझे इंडिपेंडेंस डे पे मैंने 2018 में ही लिखा था एंड इट हैड डन वेरी वेल ऑन माय पेज। So in 2019, when I do these special projects with Queens whenever you know they're getting a celebrity and they want to create a different kind of a video, which are called basically concept videos. So my friend Divya in Queens, she said that you know we want to do a video for this movie called Article 15. So do you want to write something about it? And Ayushman is somebody who is known for you know having his own poetic instinct. He keeps posting a lot of poetry. So I said, see, I have this poem and it goes very well with the thought of the movie, which is basically that you know Constitution has given us everything, but do we really have it? So वो जो Article 15 का जो पूरा thought है कि जो which talks about equality, जो Constitution ने हमें मिली है दी है, लेकिन हमें मिला है। So honestly, 90% of the poem is the same. The last line जहाँ पे मुझे थोड़ा फिल्म का इंटीग्रेशन करना था, तो मैंने वो लाइन डाली थी कि धर्म जात और रंग जात और धर्म का ये भेदभाव संगीन है, मुख हमें क्यों देखता यूं आर्टिकल 15 है। हक मिलने में और हक होने में अभी भी एक बड़ा डिवाइड। मेरी आजादी मेरा राइट है जरा कंडीशंस अप्लाई। So that is how it happened. That how one poem, you know, you've written for some other, you know, in fact, that has happened with one more poem of mine, which I had written for Hindi Divas in 2018. It was called Hindi to Tension Na Le, and in fact 2017 में लिखा था। In 2018 में when Quint had an association with Google India for promotion of Indian languages, so this poem was taken and this poem as well did very well. So ऐसे होती हैं चीजें। In fact, it is one of the वही जो आप बोल रहे थे वायरल हिट में से एक तो है ये हिंदी। बट वो भी मैं सुनाऊंगी सबको। बट मुझे बताओ हाउ डज इट फील यार, वायरल? हम तो वायरल हुए नहीं तो हमें पता नहीं। हाउ इज दैट फीलिंग? एक्चुअली ये जो पहली फीलिंग मुझे जब मेरी बारिश वाली पोएट्री वायरल हुई थी, उसकी सेटिंग भी बिल्कुल घर के कैंडिड शॉट था। मैं यहाँ पे बैल्कनी तो होती नहीं बॉम्बे में, मैं गैलरी में इधर ऐसे बैठा था और वाइफ से जो शूट करती हैं उन्होंने शूट किया था। और वो मैंने जिस संडे को डाला था उसके एक हफ्ते बाद 2-3 दिन बाद
व्हाट्सएप ग्रुप से, और तब तक मेरे पास मुझे इतनी समझ नहीं थी कि लोगो भी डालना चाहिए, क्योंकि क्या हुआ कि वो बारिश वाली पोएट्री जब वायरल हुई, लोगों को पता नहीं था कौन है ये, कि क्योंकि किसी ने फेसबुक से उतारा, व्हाट्सएप पे डाला, व्हाट्सएप से सारे ग्रुप्स में डाल दिया, तो ये लोगों के पास जा रही थी, तो जो लोग जानते थे, और उस वक्त मेरे बाल भी कटे हुए थे, तो जो लोग जानते थे वो लोग तो बता रहे थे अरे ये तो बहुत अच्छा है ये वो, तो फैमिली ग्रुप में और दोस्त बताने लगे कि यार ये ना वायरल हो गई है, ये देखो मेरे ग्रुप में आई है, और लोग फेसबुक पे लिख रहे थे। तो तब बड़ा मतलब तब मुझे एक्चुअली पहली बार ये बात समझ में आई थी। उससे पहले मुझे भी लगता था अरे वायरल वाला ना पूरा एक स्कीम होती है, कुछ कोई कंपनी होती है प्रमोट करते हैं, बट देन आई रियलाइज दैट यू नो इफ द कंटेंट इज रिलेटेबल, इट डज नॉट नीड एनीथिंग, कौन कहाँ पे उसको डाउनलोड करके व्हाट्सएप पे डालेगा, और कहाँ कैसे वो पाकिस्तान पहुंचेगी, अमेरिका पहुंचेगी, कहाँ कहाँ वो पहुंच जाती है। आप, मुझे पाकिस्तान से भी कई मैसेज आए कि भाई हमको Wow. मतलब ये मैं पाकिस्तान सेंडिंग यू लव फ्रॉम पाकिस्तान, हमारी फीलिंग एकदम एक जैसी है, और ये सारी चीजें। तो वो फीलिंग जो पहली बार जो आप पूछ रहे हैं कि वायरल होने का, वो एक भरोसा देती है बेसिकली आपको कि इफ यू नो इफ इट इज रिलेटेबल एंड इट इज स्ट्राइकिंग अ chord विद अ लॉट ऑफ पीपल, देन chances are that you won't need anything else. तो वो है। इनफैक्ट कई But लोग that पूछते is भी थे, और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था, मुझे मुझे याद है वो दिन में वो तो 3-4 दिन के बाद वो वायरल हो गई थी, फिर मैं ऑफिस में पहुंचा, और हमारे ऑफिस में जो टेक्निकल हेड है उन्होंने बोला एक मिनट जरा सेल्फी लेनी है, मेरा फ्रेंड यकीन नहीं कर रहा कि तू मेरे साथ काम करता है। तो दैट वाज वेरी एंडियरिंग। wow. Yeah, I was just like यार ये तो मैं पूछूंगी, क्योंकि आई एम श्योर मेरे जैसे बहुत लोगों को यही लगता है कि वायरल वगैरह कुछ होता नहीं है, यू जस्ट हैव टू डू इट। बट हम ये भी देख सकते हैं कि यार वायरल कभी कभी कुछ भी हो जाता है, लाइक करेक्ट करेक्ट विनोद जोक। मुझे तो आज तक विनोद का मतलब नहीं समझा वो क्या था, बट करेक्ट करेक्ट। यस विनोद इज वायरल। बट या सो वायरल के नाम पे हम अभी आपके जो हिंदी वाली जो पोएम है वो भी सबको सुनाएंगे। हिंदी, तू टेंशन ना ले, कभी फिरंगी कभी स्वदेशी आएंगे डराने वाले, मेरी नजर से देखो तो तेरी राह में फैले बस उजाले। हिंदी, तू टेंशन ना ले, ए भाषा हिंदुस्तानी, तू 22 जुबानों को जोड़ता एक पुल है। तू गाना सुपरहिट, पिक्चर हाउसफुल है, तू दक्षिण से पश्चिम के बीच की गुफ्तगू है। रेल किसी दिशा चले संग चलती तू है। तुझे मैंने दूर अंडमान में भी सुना है, तुझे बोलकर मैंने अनजानों से रिश्ता बुना है। टूटी फूटी सही तू हर प्रांत में चल जाती है, जिस जुबान पड़े उस जुबान ढल जाती है। तू बिन बोली रिश्वत है, तू देश की आदत है। तू चाय के संग छन जाती है, अखबार से विचार बन जाती है। तू पहली लिखी शायरी है, तू रौनक डायरी है, तू रेडियो की कमेंट्री है, अचानक निकला ओ तेरी है। इंग्लिश की क्लास में तू चुपके से की हुई हंसी ठिठोली है। तू चुनाव का नारा है, नेताओं की बोली है। तू गाड़ी के बंद शीशों में निकली दिल की भड़ास है। तू हमारा सच है, सोफिस्टिकेशन का जब उतरता लिबास है। उर्दू की सोहबत में तू महफिलों का तराना है। अंग्रेजी तुझसे दोस्ती चाहे उसे मासिस तक जो जाना है। तू एड्स की टैगलाइन है, व्हाट्सएप का हर तीसरा जोक है। तेरी खूबसूरती ये है कि तू बेरोक टोक है। तुझे बोलने से पहले हिंदुस्तानी सोचता नहीं है। तुझे सही बोले या गलत कोई इज्जत नोचता नहीं है। तुझे खतरा है भी अगर तो है बस अपने मतवालों से, सबवे को पैदल पारपथ लिखने वालों से। सरकारी फाइलों में घिसती है जो सालों से, ऐसे ही भाषा के स्वयंभू रखवालों से। तेरी राह है रोशन अगर तेरे रखवाले न बने तेरे पैरों के छाले। हिंदी, तू टेंशन ना ले। वाओ। इसमें मुझे वो इज्जत वाला लाइन कितना सही लगा।
that उतरती, wow. So relatable. So no wonder अब समझ रहे सब लोग जो हमें देख रहे हैं कि why did this go viral? Obviously इतनी सारी सच जब कोई लिखेगा तो बट अभिनव, so आपको क्या लगता है जब आपने, आई थिंक सो आपने डेडिकेटेडली अपने पोएट्री, अपनी राइटिंग को कविवार से ही स्टार्ट किया, राइट? उससे पहले तो आप बस काम आ रहा था, लिख रहे थे एंड गोइंग ऑन, बट डेडिकेटेडली अपना पेज बनाया, दैट्स व्हेन यू थॉट कि यार मैं इसको रेगुलरली अपना भी. Correct. So did Yeah. that really help? So I'll tell you, basically I always wanted to write lyrics, जो गाने होते हैं. तो and I realized that it won't happen that वो जमाना नहीं है कि जब आप डायरी पे लिख के लेके जाएंगे म्यूजिक डायरेक्टर के पास, सर मैंने ये लिखा है, देखिए मैंने क्या लिखा है. So I realized very early that I would probably need to create a creative showcase where I would also know myself कि भाई मैं कैसा लिखता हूँ. मतलब I think because उससे पहले मैंने लिरिकल या पोएटिक लिखा जरूर होगा, बट वो किसी एड के लिए लिखा होगा, बहुत सारे ब्रांड्स के लिए लिखा होगा, बहुत से सक्सेसफुल एड कैंपेन्स में पोएट्री वगैरह यूज की थी मैंने. बट हाँ, एक जगह इकट्ठा करके डेडिकेटेड स्क्यूड तरह से मैंने नहीं लिखा था. सो दैट इज वेयर आई स्टार्टेड गिविंग मोर वेट टू पोएट्री ओनली, बिकॉज आई थॉट कि अगर मुझे आगे जाके लिरिक्स लिखने की कोशिश करनी, बिकॉज दैट लिरिक्स लिखना बहुत पैशनेट लगता है मुझे, बहुत मतलब सारे फॉर्म्स ऑफ राइटिंग में जिसमें सबसे ज्यादा लगन है ना मुझे, जिसमें बहुत मजा आता है कि गाना, तो वो इट्स लाइक नो अदर फॉर्म ऑफ राइटिंग दैट गिव्स टू मी. सो देन आई थॉट कि भाई अगर ऐसा लिखना है तो कुछ पोएट्री का ही कुछ होना चाहिए, क्रिएटिव शोकेस. So that is where I started writing for this. क्योंकि बाकी फॉर्म ऑफ राइटिंग फिर भी हो रहा था. आई वाज राइटिंग ह्यूमर आउटसाइड, आई वाज राइटिंग कुछ जैसे के लिए मैंने कुछ कैंपेन्स लिखे थे, दैट वाज ह्यूमर. सो ऑल ऑफ दैट आई न्यू, बट पोएट्री के साथ मेरे साथ ऐसा होता है, इट कम्स वेरी नेचुरली टू मी. मतलब वो उसके लिए मैं अगर प्लेन में भी अगर मैं जा, songs are challenging. Songs are challenging in one respect that it is basically it's a little technical that way, क्योंकि आपको I'm sure you know about it that they give you a tune and then you have to write. Yeah. So वो मीटर, हाँ वो मीटर तो उसमें थोड़ा टेक्निकल होता है. पोएट्री में आप बह सकते हो क्योंकि आपका ही मीटर है, आपका ही वर्ड सिलेक्शन है. बट या इफ यू राइटिंग लिरिक्स फॉर अ फिल्म की सिचुएशन या फिर किसी ब्रांड के लिए, जैसे एलजी के लिए मैंने कुछ लिखा था, तो उसमें आपके पास एक ब्रीफ होती है और आपको अकॉर्डिंगली सारे वर्ड्स भी आपको पता है कौन से यूज करने हैं आपको. राइट. लेकिन ये जब से sorry say some, you were saying. I'm just saying that is the difference between poetry writing जैसे और गाने में. बट जब पहले तो आपने कविवार, लाइक यू सेड, यू स्टार्टेड, तो ठीक है वो आप अपने लिए लिख रहे थे, बट जैसे एक वो हो गया कि ओके नाउ पीपल आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड, प्लस ब्रांड एसोसिएशंस हो रही है, सो देन अभी आप क्या, नाउ हाउ डू यू राइट? डू यू स्टिल थिंक कि यार मैं ये खुद के पेज के लिए लिख रहा हूँ, कि नाउ यू आर ऑलवेज इन दैट ब्रांड एंगल मेंटली कि नहीं यार ये भी शायद वी कैन? एक्चुअली अब ये होता है कि थोड़ा राइटिंग का टाइम कम मिलता है क्योंकि ऑब्वियसली आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. बट या व्हेनेवर सो फॉर एग्जांपल व्हेन लॉकडाउन हैपेंड, आई हैड रिटन अ पोएम व्हिच वाज ऑन फॉर माय पेज ओनली कि तू सबकी जान बचाएगा. सो इट वाज अबाउट टेलिंग एवरीबॉडी दैट ईच ऑफ अस, हम लोग जो भी जिंदगी में आज तक बनना चाहते थे जान बचाने के लिए, एक आर्मी ऑफिसर, एक डॉक्टर, वो सब कुछ करने का मौका अब है जब देश को हमारी जरूरत है. सो दैट इज हाउ इट इज. तो मतलब अगर इंस्टिंक्टिवली अभी जैसे मुझे आई एम टॉइंग विद एन आइडिया ऑफ हाउ वर्क फ्रॉम होम इज अफेक्टिंग ऑल ऑफ अस, द वे इट इज अफेक्टिंग, इट्स लाइक अनदर pandemic in waiting, maybe the way it is spoiling the work culture. So whenever I, अब तो मुझे कहना है, अब मुझे बोलना ही है,
दैट इज व्हेन आई राइट, मतलब अगर वो ऐसा होता है कि हाँ यू गेटिंग अ सेलिब्रिटी फॉर द सेम थिंग, लाइक फॉर एग्जांपल लॉट ऑफ टाइम्स ऐसा हुआ कि जब पिछले साल के एंड में इंडिया भर में प्रोटेस्ट चल रहे थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट के लिए और उस चीज के लिए, तो इंटरेस्टिंगली यू नो देयर वर पीपल, देयर वर celebrities who also wanted to voice it. So then I got, Right. so Zishan voiced one poem, Diya Mirza voiced one poem. So ये दोनों Right. तरफ ही होता है कि कभी मौका मिल जाता है वो बात बोलने का, कभी बात इतनी बड़ी होती है कि बोले बिना रहा नहीं जाता, तो वो तो आप डाल देते हो कि भाई जब आए तो आप ले भी सकते हो, बट फिलहाल यू गाइस कैन रीड इट ऑन कविवार, ऐसा. करेक्ट, so that's it. But what is your process, Abhinav? Like, अगर मैं writing के लिए कोई भी form of writing, what is आपका process क्या होता है usually? Or maybe, you know, for Deadline. everyone who doesn't know. Deadline. Sorry, deadline. Oh. It's the biggest trigger. No, actually, process इतना मैं सोचता नहीं हूँ, but जो मैंने पोइट्री में हमेशा सोचा है and which is kind of worked is it has to be relatable. अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ और रिया उसके साथ उसी तरह से एसोसिएट कर रही है, जैसे मैंने एक दिवाली पे पोएम लिखी थी 2017 में, दिवाली है मैं घर आया हूँ. So it was about a person who, because everybody in India comes back to their home during a festival. Diwali, yeah. When चाहे Especially दुर्गा Diwali, पूजा, मतलब. करेक्ट, चाहे दुर्गा पूजा पे जाने मतलब बंगालीज जाते हैं कोलकाता, या छठ पे बिहार और उत्तर भारत के लोग जाते हैं, लेकिन मोटा मोटा दिवाली पे तो घर आने की बात होती है कि घर आने वाली जो बात है दिवाली पे. सो दैट और सो सी दैट्स द थिंग. सो आई राइट इट थिंकिंग दैट यू नो दिस इज व्हाट आई फील, एंड इफ इट इज जेन्युइन, इफ इट इज हार्टफेल्ट, नो आई हैव सीन दैट इट वर्क्स. बंदा अमेरिका में बैठा होगा, उसको वो बात वैसे ही लगेगी जैसे दिल्ली में बैठे हुए या बॉम्बे में बैठे हुए या बिहार में बैठे हुए बंदे को लगेगी, या पाकिस्तान में बैठे हुए बंदे को लगेगी. इट हैज वही जो बोलते हैं ना कि इमोशंस आर यूनिवर्सल. या दैट इज समथिंग दैट आई सी कि हाँ वो रिलेटेबिलिटी होनी चाहिए. वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मेरा यू नो क्रिएटिव मास्टरपीस में लिखने जा रहा हूँ, दुनिया उससे रिलेट करे या ना करे. दैट इज नॉट माय, बिकॉज देन आई थिंक इट्स जस्ट अ वेस्टेज. तो मैं खुद ही बना के रिकॉर्ड करके खुद देख लूँ ना. If I'm putting out something, it needs to vibrate. Right. But it's surely, vibrate. मतलब ये सच तो है नहीं कि आपको राइटिंग के लिए लिटरली वो सीनरी वाली जगह चाहिए जो हमें फिल्मों में दिखाया जाता है, और एक बहता हुआ समुंदर चाहिए. नथिंग लाइक दैट. आपको बस डेडलाइन चाहिए. बहुत ही सूडो चीज है वो. बट यू नो राइटर के लिए हर एक के दिमाग में वही आता है कि अरे लिखना है तो मुझे, आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स यू नो हु आर लाइक यार मैं ना कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ, आई एम गोइंग फॉर अ बैकपैक. मैंने बोला भाई तू लिखने के लिए इतना सारा खर्चा करके बैकपैक कर लेगा, क्या बात और है. तो एक्चुअली देखना फिर वो लिखेगा फिर भी घर आके लास्ट मोमेंट पे रात को. करेक्ट. आई थिंक वो So, थोड़ा yes. सा थोड़े से क्लीशेज हैं जो मुझे लगता है और सबसे पहली बात ये है ना कि ये जो पूरा क्रिएटिव प्रोसेस है ना, इसको बहुत ही ग्लैमराइज कर दिया है लोगों ने. यू नो इट्स माय क्रिएटिव प्रोसेस. तो जबकि इट इज, जैसे मैंने कहीं पे पढ़ा था, आई थिंक प्रसून जोशी ने बोला था कि अगर मैं राइटर हूँ तो मैं एयरपोर्ट की भीड़ भाड़ में भी लिखना मुझे आना चाहिए, जैसे एक भीड़ भाड़ के बीच में एक मोची जूता सिल देता है. ये हमारा काम है, हम क्यों इसको ग्लैमराइज करें कि भाई ये हमको ऐसे ही कि छत पे जाके लिखूंगा चांद को देखते हुए. हाँ, या मैं रात को ही काम कर सकता हूँ and things like that. But that But very well trigger, said. that is still okay कि वो ट्रिगर होता है. जैसे मैंने सुना ना रहमान के लिए बोलते हैं he composes at night. That way a lot of people write at night क्योंकि वो शांति और वो सारी चीजें. But उसकी प्रोसेस की भी एक सीमा होनी चाहिए. Well, of course, रहमान सर के तो बहुत सारे स्टोरीज है, and of course that's a different thing.
बट या आई अग्री कि प्लीज गाइज, अगर आप में से कोई भी ऐसा है यहाँ पे जो फ्यूचर में राइटिंग को अपना प्रोफेशन बना रहे हैं, देन प्लीज ऐसा लर्न इट फ्रॉम हिम. इट्स नॉट लाइक आपको घर बार छोड़ के अकेले रहना है एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स. बट अभिनव कभी ऐसे यू नो लाइक it may be different for different people. It may be unfair for me, but I think that is the correct one, right? मतलब होना तो ऐसे ही चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली देखिए कोई भी प्रोफेशन में जो भी इंसान होता है वो वहीं के वहीं बैठ के करता है ना. वो ये थोड़ी बोलता है कि मैं पहाड़ में जाके ब्रेक लूं. हाँ, ऑब्वियसली बिकॉज इट इज अबाउट न्यू आइडियाज, फ्रेश आइडियाज, दिस एंड दैट. सो वो टाइम और वो सारी चीज जरूर, हाँ वो एक रन ऑफ द मिल नहीं हो सकता, बिकॉज देन जो आप क्रिएट कर रहे हो उसमें कुछ नया नहीं है या इंटरेस्टिंग नहीं है. देयर इज नथिंग न्यू टू से. Right. But I think the approach should be like any other professional who does any other profession. Right. That's No, what and I I think if he who's here, of course, maybe like, you know, you have to put 10 times more efforts, but if he is creating masterpiece after doing 10 other work, so I think it's better to start thinking of the creative world also like that than those, you know, unnecessary के clouds. बट आपको कभी ऐसे वो नहीं आती, क्या बोलते हैं, क्रिएटिव डिफरेंसेस, स्पेशली जब आप एज एन इंडिविजुअल, आई एम सेइंग, क्योंकि जब आप एज अ कंपनी रिप्रेजेंट कर रहे हो, इट्स अ डिफरेंट डील एंड यू नो यू हैव अ मोर बिगर से. बट जैसे ही हम एक आर्टिस्ट इंडिविजुअली हो जाते हैं, इट्स अ डिफरेंट अप्रोच. देन द you know the client has a bigger say. So आपकी creative differences का उस वक्त, how do you tackle those things? I think we have to reach a meeting point. वैसा रहता है कि जैसे for example when I've used poetry with any brand associations, no, I have ensured that I'll tell them that and obviously I've also reached out to people who understand that, you know, what I'm trying to serve is poetry. It is not an advertisement. So wo like I've worked with Chayos, I've worked with Reliance Smart, I've worked with LG also. So तो उसमें यही होता है कि एक चीज क्लियर होती है कि देखिए ये एडवर्टीजमेंट नहीं है, ये हमारे पास एक बहुत अच्छी एक पोयम है जिससे हम एक चीज बोलना चाहते हैं, उस पे बहुत खूबसूरती से ब्रांड आ रहा है. सो एंड देन ऑब्वियसली यू कैन थोड़ी ऊपर छोटी मोटी चीजें तो ऊपर नीचे होती हैं, यू नो, व्हेन द ब्रांड्स आर इन्वॉल्व्ड, यू नो, कौन सा लोगो कहाँ कैसे, वो सारी चीजें, बट ऑल दोस कैन बी. बट आपकी ऐसी कोई फ्रस्ट्रेटेड वाली स्टोरी नहीं है, राइट, कि नहीं यार नहीं करना आपको तो? नहीं, आई थिंक मैं फिर ऐसी जगह अप्रोच ही नहीं करता हूँ. मुझे वो, क्योंकि अल्टीमेटली आई डोंट वांट कि कोई ये सोचे कि अच्छा ये इसमें पोएम तो कुछ नहीं थी, सिर्फ एड ही एड था, ऐसा आई डोंट वांट टू डू दैट. Right. Because, so then it defeats the purpose. I want to serve a beautiful poem. If it is going with the brand, बहुत अच्छी बात है. Fairly said. And because of these only, I think again you have another masterpiece which has been very, very highly appreciated, which I want everybody here to watch. This is Abhinav's poem or words spoken by Mr. Vinay Pathak, जो एक और काफी वेल सर्कुलेटेड, ऑलमोस्ट वायरल मैं कह सकती हूँ. सो गाइस वॉच दैट नाउ. नमस्कार, मैं एक आधुनिक कविता पढ़ने जा रहा हूँ. लॉकडाउन तुझको समझा टॉर्चर, निकला तू तो टीचर रे. घर में बंद हूँ लेकिन मैं कुछ पहले से आजाद हूँ. नजरें कैद हैं चार दीवारी पर नए नजरिए से आबाद हूँ. कुछ मिक्स इमोशन वाली लगती लाइफ आजकल पिक्चर रे. लॉकडाउन तुझको समझा टॉर्चर, निकला तू तो टीचर रे. शुक्रिया लॉकडाउन ये सिखाने के लिए क्यों बिमला से साबुन प्लेट्स पर कभी कभार छूट जाता होगा. हर कप संभाल कर रखने पर भी हाथ से फिसल कर टूट जाता होगा. कि जूठे बर्तनों सी गलत फहमियां बीच बीच में साफ होनी चाहिए. इकट्ठा हूं इससे पहले ही कुछ रंजिशें भी माफ होनी चाहिए. शुक्रिया ये समझाने के लिए कि किस साहस से सफाई वाला रोज दूसरों का कूड़ा उठाता होगा. घर बैठे हम आराम से वो इसेंशियल सर्विस में आता होगा. वो नीचे वाली परचून दुकान जिसको एलएस समझ के इग्नोर किया, उसी ने झोली भर दी अनाज से सारे ऐप्स ने जब मुंह फेर लिया.
बाहर की जगमग इतनी थी कि झांकना भूल गए थे भीतर रे। लॉकडाउन तुझको समझा टॉर्चर, निकला तू तो टीचर रे। शुक्रिया लॉकडाउन यह याद दिलाने के लिए कि जरूरत के लिए जो काफी हर घर में वो 10 पैकेट है, पर जरूरत और ख्वाहिश का फर्क ही शायद सुपरमार्केट है। कि जिन खुशियों के पीछे घर छोड़कर रोज भागते रहे, वो खुशियां तो घर वालों से थीं जो बस कुछ पल संग मांगते रहे। जो इत्मीनान ढूंढते रहे एक वेकेशन यूके, पेरिस, रोम में। बच्चों संग जब खेला लूडो, समझे खुशी वही जो होम में। जरूरतें तो सारी कंट्रोल में, बस ख्वाहिशों का भागे मीटर रे। लॉकडाउन तुझको समझा टॉर्चर, निकला तू तो टीचर रे। शुक्रिया दुनिया को याद दिलाने के लिए कि बड़ी बड़ी मिसाइल रखना किसी मसाइल का हल नहीं। हॉस्पिटल्स की है असली ताकत, वेपन्स में कोई बल नहीं। खिल के कुदरत करे इशारे, सुधरने का है पल यही। आज ना संभले तो शायद फिर अपना भी कोई कल नहीं। देश जो बनते थे फन्ने खां, हारे नन्हे अनदेखे क्रीचर से। लॉकडाउन तुझको समझा टॉर्चर, निकला तू तो टीचर रे। ये पोएम, ये बातें तो आई डोंट थिंक आपने पहले लिखी होगी। लॉकडाउन पे कविता तो भाई लॉकडाउन में फंसने के बाद ही कोई लिख सकता है। करेक्ट। और इनफैक्ट मैंने ये पोएम थोड़ी लिखी थी। ये समझिए जब लॉकडाउन लगा था और जब तक सेकेंड लॉकडाउन खत्म हुआ था, तब तक मैं थोड़ा लिख रहा था, क्योंकि मुझे डेडलाइन भी एक्सटेंडेड थी कि चलो ठीक है, वी कैन टेक सम टाइम ऑन दिस। बट यू न्यू कि मतलब ये ऐसा कुछ कोई सेलिब्रिटी होंगे इसको रीड करने के लिए, या ये इसकी कोई प्लानिंग ऐसी थी कि वो जस्ट गिवन? सो इट वाज मोर ऑफ अ ब्रीफ रिटन पोएम। मतलब मुझे पता था कि वी विल बी अप्रोचिंग अ फ्यू सेलिब्रिटीज, सो आई न्यू कि हाँ, 2-3 शायद नाम मुझे बताए गए थे। उनमें से आई थिंक विनय पाठक जी ने फाइनल कंफर्मेशन दिया था। एंड तो हाँ, तो बस वही था कि तो आई वाज राइटिंग थोड़ा जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस आ रहे थे लॉकडाउन के, वैसे वैसे उसे कंप्लीट कर रहा था। एंड देन इट रियली केम आउट रियली वेल। I think it's It been did, of brilliantly, course, I think the way it has been, accepted. yeah, and I think वो क्योंकि graphically एक एक भी बातें सच है उसमें। प्लस ऑफ कोर्स द ग्राफिक्स एंड yeah, it सच में definitely, यार, कोई लॉकडाउन खत्म करो, सब कुछ खत्म करो, जस्ट गेट अस बैक टू नॉर्मल। correct. So But I was thinking, no, please go. हाँ, तो नो दिस ओनली कि यार जितने लोग शायद कंप्लेन करते थे कि फैमिली टाइम नहीं मिला, फैमिली टाइम, इतनी फैमिली टाइम मिल इतना चुकी है भाई अब। अब हमें नहीं चाहिए Absolutely. और 10 साल फैमिली टाइम नहीं चाहिए। आज मैं बाहर गया था और ऐसा लगता है कि जैसे एक सिविलाइजेशन कभी थी यहाँ, अब मॉल्स खाली हैं, सड़कें खाली थी, और ऐसा लगता है कि So, जैसे वो बोलते हैं ना, जैसे डायनासोर के लिए या पुरानी किंगडम्स के लिए यहाँ पे कभी हड़प्पा जी, सिविलाइजेशन थी, उन्होंने ये सब बनाया था, सीरियसली वैसा लगता है। बनाया था एग्जैक्टली। बाय द वे, एक और ऑफ कोर्स हम टुवर्ड्स द एंड आई रहे, सो आई मुझे एक चीज याद आ रहा है, एंड अगेन दिस इज फॉर एवरीबडी। सो मुझे नहीं पता था अभिनव बिग बॉस के लिए भी काम कर चुके हैं, ठीक है? एंड आपको शायद याद होगा या नहीं, पता नहीं। सो वन फाइन डे आई हर्ड हिम, ठीक है सीक्रेट है लेकिन अब इसमें चलता है। वन फाइन डे ना, मैं तभी आई वाज वर्किंग जब रेडियो 1 में, एंड आई सेड अभिनव कल तुम कॉल पे थे, वो जो कॉल आता है वोडाफोन कॉल, एंड अभिनव भी ऐसे, अरे चलो मुझे बता दो, अरे हाँ आई वर्क देयर, सो एंड ही इज लाइक हाँ मैं था, दैट्स इट। तो मैं तभी मैं सोच रही हूँ यार, वाह कितना बड़ा फॉलोअर है बिग बॉस का। कि मतलब इतना काम काज, डेडलाइन में वो फोन वोन भी कर रहा है, क्या बात। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई थॉट ऑफ यू। Yeah, no, I was writing that the weekend का वार जो होता है ना, जिसमें सलमान आते हैं, उसपे एक मिसेस बिग बॉस कैरेक्टर क्रिएट हुआ था उस साल।
So I was writing for Mrs. Big Boss and Salman का interaction. So उसमें अच्छा. the team asked me कि we need one caller. So then they connected me और इनफैक्ट मुझे पता भी नहीं था कि उस साइड सीधा उस तरफ सलमान होंगे. मैं ऐसे कहीं पे कोने में कहीं पे बात कर रहा था जैसे हम रेडियो में बात करते हैं. तो उधर से आवाज आई, हाँ जी अभिनव बोलिए. तो मैंने सोचा अरे बीच में कोई ऐसे ही आदमी बोल रहा है सलमान की तरह, लेकिन वो वाकई सलमान थे. उस दिन आई सॉ द पावर ऑफ टीवी. मेरे फोन पे मैसेज ही मैसेज मैसेज. उस वक्त मैं काम ही कर रहा था. हमारा एक वो वीकेंड वाला शो शूट हो रहा था और इतने मैसेज इतने तब मुझे पता चला भाई ये क्यों इतना पॉपुलर शो है. क्यों इतना? I mean, imagine वो तो कितने लोगों को तो पता भी नहीं होगा that you were closely associated. They just thought that आप, जैसे मैंने सोचा कि आप random caller हो. Yeah. And you are like a celebrity because आपकी आवाज. Yeah, TV is like ऊपर से Big Boss is. वैसे I just आज ही मैंने पेपर पे देखा. I mean, this is off topic, but Big Boss आ रहा है. पर मैं सोच रही हूँ how, मतलब लॉकडाउन जो एक रियल Big Boss चल रहा है उसमें अगर कोई बिग बॉस में कौन ही जाएगा भाई. इसकी इतनी हिम्मत होगी जो इंसेप्शन हो जाएगा बिग बॉस टू बिग बॉस. बाहर निकलने का कुछ शो होना चाहिए. Exactly. But how is the TV experience, because or especially Big Boss because TV is very वो एक demanding. reality show है. Yeah, very very demanding. TV is very demanding, especially from radio. When you work in TV, you realize that radio is such a happy 8-hour job. Because TV is shoot से पहले 1000 चीजें, and it is controlled by a lot of factors. There is a इंडिया का इतना बड़ा सेलिब्रिटी उसको होस्ट करता है, तो ऑब्वियसली टाइम वगैरह का बहुत ऊपर नीचे होता है. एंड वेरी वेरी एग्जॉस्टिंग इट इज, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक चीजें बदलती रहती हैं. बट हाँ ये भी होता है कि जिस वक्त शूट हो जाता है चला जाता है शो, वो जो फीलिंग होती है ना कि कुछ किया है, वो भी बहुत बड़ी होती है. मतलब आपको लगता है कि यार हाँ मतलब मेहनत की है. Correct. I'm sure. Guys, let me also tell you कि उनकी काम को सिर्फ मतलब बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है. I mean, हम और आप तो it's fine, we are like friends and family types, but let me show you. आपने शायद Father's Day पे recently इनकी एक कविता थी जिसको सोनाक्षी सिन्हा ने रिसाइट किया है फादर्स डे पे. एंड उनके फादर यानी शत्रुघ्न सिन्हा जी ने he tweeted, right? Yeah, so he named Abhinav and he really appreciated. So I think we should quickly also look at what that was. पापा है ना, दिखाएंगे नहीं. ट्रेन से उतर के भी ट्रेन चलने तक जाएंगे नहीं. किसी कोने में खड़े रहेंगे पर बताएंगे नहीं. आंखों में समंदर होगा, एक बूंद मगर छलकाएंगे नहीं. पापा है ना, दिखाएंगे नहीं. वो दिखाएंगे नहीं कि तुम्हारी फरमाइश को अनसुना करके भी सुना है, कि तुम्हें देने कुछ कीमती वक्त कीमती चुना है, कि सिर्फ मां नहीं वो भी सीने में दिल रखते हैं. सुपरमैन दिन भर बनकर रात को वो भी थकते हैं. हर ठोकर से आगाह करेंगे, गिरोगे तो आएंगे वही. पापा है ना, दिखाएंगे नहीं. वो दिखाएंगे नहीं कि तुम्हारे एग्जाम के लिए छुट्टी लेना मुश्किल था. जो आम तुम्हारे लिए छोड़ा था उस पे उनका भी दिल था, कि तुम्हें हॉस्टल भेज के उनका दिल भी घबराता था. नींद भी उन्हें तब आती है जब मैसेज तुम्हारा आता है. तानों में ही प्यार ढूंढो, बातों से बहलाएंगे नहीं. पापा है ना, दिखाएंगे नहीं. वो दिखाएंगे नहीं कि तुम जिन्हें कंजूस समझो वो तुम पर सब लुटाने को तैयार है. वो बाप बने बाहर से पर बनना उनको भी तेरा यार है. डांटेंगे तुमको कि ये क्या बेपरवाह जवानी का जोश है, पर दुनिया जो चूं भी करे तो कर देते खामोश है. सर भले हो घर से ऊंचा, सर पर तुम्हें चढ़ाएंगे नहीं. पापा है ना, दिखाएंगे नहीं. So well written, again so relatable. This Very one nice, has Abhinav, very nice. Thank you so much. This one has a very interesting story.
So last year, 2000 December, when Dabang 3 was getting released. So Mm. I had written a poem which Sonakshi had read out. It was called O Sri Chal Dabang Ho Ja. And Yes. that has a different, viral story. That poem did very well, but it did very well on TikTok, which means when it, Mhm. so a lot of women in rural India related so much with that poem that they recorded videos and they put out. Somebody told me that's a hit on TikTok. So and it kind of really touched me because आप बॉम्बे में कमरे में बैठ के जो लिखते हो, जब आपको लगता है कि अरे यार ये दूर बुलंद शहर में या राजस्थान के टोंक में या जमशेदपुर में जब कोई उस पर टिकटॉक बनाता है तो वो लड़की को कितना छुआ होगा, वो शब्द की ओ स्त्री चल दबंग हो जा। तो आई रिमेम्बर सोनाक्षी ने जब शूट कर रही थी, मैं शूट पे नहीं था, उन्होंने क्विंट की टीम से बोला कि मुझे राइटर से बात कराइए, आई जस्ट वांट टू कॉम्प्लीमेंट हिम। तो मैं ऑफिस में था, मेरे पास फोन आया कि हाय दिस सोनाक्षी, आई जस्ट वांट टू टेल यू अभिनव इट्स वंडरफुल, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस दैट आई हैव शॉट। So I Oh, said, sweet. thank you so much. Yeah, it was a wonderful gesture from her. So this, and in so cut to 6 months, May or June, beginning of June, I think she messaged me because she saw some work of mine, and she told me, let me know if there's something that's there. So this poem again, this was something that I had recorded in 2018. I said, I have recorded this one for my page. Would you like to do it? I would like to, make some change. Like the Khamosh part was obviously not there, Yeah. but when I Yeah. got to know that she's going to do it, and Shatruji is going to, uh, obviously there will be references. So I just made some changes to the poem. और और शत्रुघ्न जी का बहुत बड़प्पन है कि उन्होंने इतनी प्यारी बात लिख के डाली। इनफैक्ट उन्होंने लिखा कि अभिनव नागर ऑफ दबंग फेम, तो बहुत लोगों ने सोचा मैंने दबंग भी लिखा। डेज टू कम शायद, क्यों नहीं, दबंग 5, दबंग 6, दबंग तो आती रहेगा वैसे। But yeah, totally, it was very, very, very nice. And of course, कितनी सारी टॉपिक्स है यार, ऐसे देखो पता भी नहीं चला, वी आर ऑलमोस्ट क्लोज टू एन आवर। और बट यू नो, बिफोर आई एंड दिस, राइटर एज अ प्रोफेशन, आई सी आजकल क्रिएटिव एंड टैलेंट के फील्ड में लोग बहुत बहुत ज्यादा है, स्पेशली ज्यादा ही नहीं, आजकल एक इंसान ही सब कुछ है। राइटर, सिंगर, डांसर, एक्टर, करेक्ट। प्रोग्रामर, एवरी, डायरेक्टर, सब। तो इन दिस सिनेरियो जहाँ पे यू नो, जब आप एक इंसान सब कुछ करता है, ऑब्वियसली जो काम का जो टैलेंट है उसको इतना नहीं, बिकॉज दे लुक एट मोर एट यू नो हाउ वन पर्सन कैन डू एवरीथिंग, और जो एक्सक्लूसिविटी है कि भाई मैं सिर्फ राइटर हूँ, वो कम हो जाती है। सो इन दैट केस, यू नो, सम योर what do I say, your tips or your suggestions or advices to everybody who is, you know, probably looking to take this as a profession, especially इस generation में, इस time पे। I think मतलब सबसे पहले तो आई नेवर फेल्ट दैट कि मे बी आई एम इन एनी पोजिशन टू टेल एनीबडी हाउ टू एंड व्हाट टू, बिकॉज देयर आर सो मेनी, बिकॉज एवरीबडी हैज देयर ओन जर्नी एंड एवरीबडी हैज देयर ओन राइटिंग स्टाइल। बट ये तो कुछ पता चल जाता है कि आप धकेल धकेल के काम कर रहे हो, या मतलब कि या फिर आप एंजॉय करके कर रहे हो। सो इफ यू थिंक दैट इट कम्स वेरी नेचुरली टू यू, इफ दिस इज, और ऐसा नहीं कि हाँ मैं राइटिंग भी कर लेता हूँ, वैसा हर हर उसको, मतलब जो भी आपका स्ट्रेंथ एरिया है उसको आप थोड़ा टाइम देना चाहिए, उसको वो रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। मतलब ये नहीं तो ये कर लूँ वैसा, हालांकि दैट रियली हेल्प कि आप समझ सकते हो कि चलो ये मेरे लिए नहीं चला, मैं ये करके देखता हूँ, दैट एक्सपेरिमेंटेशन इज फाइन। बट वंस यू रियलाइज कि हाँ ये दिस इज व्हाट आई एम वेदर आई एम एंजॉइंग दिस और नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इफ यू आर एंजॉइंग एनी Right. फॉर्म ऑफ राइटिंग, कॉमिक में मजा आ रहा है, कॉमिक आजकल, so I think for writers it is an amazing time because of OTT. कि इतनी Correct. देर there are so many different kind of stories। हालांकि कुछ challenges हैं कि
उसमें भी थोड़ा सा मोनोटनी आ रही है, लेकिन बट स्टिल आई थिंक फॉर राइटर्स they say it's a great time for writers, and I think it is, मतलब काफी हद तक है, क्योंकि फिल्म जहाँ एक तरह से रिस्पेक्ट करती थी फॉर्मूला में सब में, अभी आई एम श्योर इफ यू गॉट अ ग्रेट स्टोरी टू टेल, अ ग्रेट लाइन टू से, बहुत कुछ है, आप शॉर्ट फिल्म लिख सकते हो, और Right. फिल्म तो लिख ही सकते हो, ओटीटी सीरीज लिख सकते हो. But yeah, I think it is just that maybe see it is, and it is a process. Like for example, now I'm learning long format writing. I'm trying my hands at long format writing. Trying to write for a series and all of that. And वो सारी चीजें चलती रहती हैं कि आप सोचते हो. तो ये तो पूरा process है. Right. So basically you're saying कि भाई अपना realize कर लो क्या है and keep working हाँ, करते रहो, समझ में आ जाएगा खुद ही. हिट एंड ट्रायल ही है and basically. putting it up. हाँ, पुटिंग इट अप, उससे भी रिएक्शन मिल जाते हैं. ये बहुत अच्छी चीज है सोशल मीडिया की, कि आप डालो, और तो Right. हो सकता है पहली बार लोग ऐसे ही तारीफ करते हैं, वाह यार दिस इज दैट. 3 4 5 बार पे समझ में आ जाएगा कि भाई मेरा जो वो एंथुसियाज्म से पहली बार लोगों का इसलिए था मैंने डाला था, या फिर इसलिए था कि द कंटेंट इज देयर और नॉट. Really दैट वे आई good. थिंक दिस Right. इज, वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव सोशल मीडिया, दैट कि अपना काम आप डाल सकते हो और Yeah. लोग रिएक्ट कर सकते हैं, और बहुत अच्छे लोगों तक काम पहुंच सकता है उसकी वजह से. Right. Right. Of course. Of course. Great, Abhinav. I think that was really insightful क्योंकि it's just कभी-कभी हमें चीजें पता होती है, but all we need is हमें किसी ऐसे से सुनना होता है जो who we see are achieving things, so it just gives a lot more motivation than अगर सिर्फ दोस्त बोलते हैं या पेरेंट्स बोलते हैं. So I think yeah, that will really help everybody. And with that, I come to an end with our session as well. Thank you so much. बहुत मजा आया. ऐसा literally लग रहा था कि 2 years back cut to फिर से हम chill कर रहे हैं यहाँ पे, जो वहाँ पे कभी शायद नहीं किया. So yes, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for joining us. Or keep sharing your work. Please let everybody know. I think Kavivar is the page. Kavivar is the Kavivar with main Abhinav space. Nagar. और कोई handles हैं जहाँ पे हम Kavivar with yes, Abhinav Nagar Kavivar on with Abhinav Facebook Nagar and Instagram. on Facebook. And Instagram. On yes, also on both the places. Yeah, Okay. on Twitter you can find me with my handle Abhinav TW. Okay, that we will write it for you if you don't remember. But yes, go straight to the FB page and Instagram page and Twitter and follow him for these lovely, lovely words that he writes. Thank you. So Thank you. Thanks a lot. Thank you so much, Priya. Thank you so much. Thanks for coming. All right. And everybody else, we will see you soon next weekend or with another new talent, with another artist, and we'll keep, making more and more interesting content here for you guys to follow and get motivated. Thank you.